Welcome children to the second part of modification in a binary file. Here I am going to continue from where I left in the last video. There I already explained you the methods of modifying, and here I will be taking up certain questions to explain you the same. So let's start. Consider a file worker.dat is already created containing few records of the workers, each having details like WID, WName, age, salary in the form of a dictionary. Okay, so assume that this file is already created having few records of this type. Now write a program to input name of an employee from user and modify his age to a new age input by user himself. So in this question आपको यूज़र से एक एम्प्लॉय नेम इनपुट लेना है और फिर उससे एक न्यू एज का इनपुट लेना है और उस एज से पुरानी एज को रिप्लेस करना है. ओके, सो सपोज द यूज़र गिव्स द इनपुट फॉर नेम एज विजय. Then you will ask for a new age for Vijay, and then the new age that will be input by the user, that is going to be the new value of age which you have to change. Okay, so how to do this program? Consider that this is the content. In order to make you understand the program, I am showing you that suppose this is the content, 4 records are there. Okay, so now how the program is being done, see. First of all, pickle module is imported because we have to make use of load function, because we are going to means a dump function and load function, because we are going to read as well as write data on the binary file. Now see, in the try block I have opened the file in RB mode. Why? Because I have to read as well as write from in the same file. Okay, so RB plus will let you read as well as write on the file, and B is indicating that it is a binary file. Then found is equal to 0, because we have to keep track of whether we found the record to be modified or not. So for this, found is 0. Now I am asking the user to enter the name of the worker whose age has to be modified. User will give you a name. Then we are asking for a new age also from the user. So name entered by user is in NM and age, new age is in A. Now what I am doing, I have started to read one object from the file at a time, and as soon as I read one object, that object will be loaded in RAM, and then I will be checking whether it is having the same name as input by user here or not. If it is the same name, then I will ask for a new age and replace the old age with this new age. But if it is not that object whose age has to be modified, then in that case you will simply move and read the next record. So first record is read. Now here one very important point that you have to remember is this. See children, as soon as you start reading the data, you know that when you are modifying in the same file, you have to go back to the place where the beginning of the record to be modified is there. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी रिकॉर्ड रीड करने से पहले ही उसकी बिगनिंग पोजीशन को एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं पॉज में. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी फ़ाइल है, उस फाइल में आपने पहला रिकॉर्ड रीड किया. ठीक है, तो हमने यहाँ की पोजीशन पहले ही पॉज में स्टोर करके रख लिए, और फिर जब हम रीड कर लेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे. ठीक है, और यहाँ आने के बाद अगर हमें लगेगा कि ये वही रिकॉर्ड है जिससे हमें मॉडिफाई करना है, तो हम सीधे पॉज पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि पॉज क्या है, पॉज इज़ द बिगनिंग ऑफ दिस रिकॉर्ड विच आई हैव करेंटली रेड. ठीक है, तो इस तरह से जब हमें वापस रखना होगा ना अपने कर्सर को यहाँ पे, ताकि रीराइटिंग यहीं पे हो जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉज की हेल्प लेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रीड करने से पहले ही उसकी पोजीशन स्टोर कर ली. फिर मैंने ऑब्जेक्ट रीड किया तो मैं उस ऑब्जेक्ट के
एंड में आ गई और मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है ये रैम में लोड हो गया। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि क्या इसका नेम सेम एज nm है। अगर है तो हम सबसे पहले कह देंगे फाउंड इज इक्वल टू 1 कि यस हमें वो रिकॉर्ड मिल गया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यूज़र की दी हुई एज को यहाँ पे रिप्लेस कराएंगे। और अब देखिए मैंने क्या किया, मतलब रैम में ऑब्जेक्ट मेरा आ गया, फिर उसके बाद मैंने उस ऑब्जेक्ट में डिज़ायर्ड चेंजेस कर दिए। अब मेरा क्या काम बचा है, रीराइटिंग का काम बचा है। तो फिर रीराइटिंग उसी पोजीशन पे तो होगी नहीं जिस पोजीशन पे इस समय आप प्रेजेंट है, क्योंकि आप उस रिकॉर्ड के एंड में प्रेजेंट है, लेकिन आपको उसकी बिगनिंग में जाके रीराइटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया, f.seek pause। व्हाट इज पॉज, पॉज इज द बिगनिंग पोजीशन ऑफ दिस रिकॉर्ड, जो आपने अभी अभी पढ़ा है, पॉज उसकी बिगनिंग का पोजीशन है। तो मैंने सीधे अपने कर्सर को पॉज पे भेजा, तो मैं उस रिकॉर्ड की बिगनिंग में आ गई। ठीक है, फिर मैंने वहीं पे उस राइटिंग कर दी, रीराइटिंग। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने सपोज ये फाइल थी और मैंने पहला रिकॉर्ड, ये दूसरा रिकॉर्ड, मान लीजिए आपने भी दूसरा रिकॉर्ड रीड किया था, तो आप यहाँ प्रेजेंट है। पॉज में कहाँ की इंडेक्स है, यहाँ की है। तो आपने जैसे ही लिखा f.seek pause तो आप यहाँ आ गए, यहाँ थे और यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ आके आपने क्या किया, राइटिंग कर दी। ठीक है, इसके बाद अब आपका रिकॉर्ड मॉडिफाई हो गया। नाउ रिकॉर्ड मॉडिफाइड इज प्रिंटेड फॉर द सेक ऑफ यूजर्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या किया, अब हम हर रिकॉर्ड के लिए यही काम कर रहे हैं। तो जिस जिस रिकॉर्ड में हमारा क्राइटेरिया नेम का फिलफिल हो रहा होगा, जहाँ पे भी डब्लू नेम जो है हमारा एनएम के जैसा होगा, वहाँ पे हम ये वाला चेंज कर देंगे। ठीक है, और एट द एंड क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप एंड ऑफ फाइल पे आ चुके होंगे। एंड ऑफ फाइल के बाद जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा, आप यहाँ आ जाएंगे। अब इस पॉइंट पे अगर फाउंड आपको 0 मिला तो इसका मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं था, यानी नन ऑफ द रिकॉर्ड्स गॉट मॉडिफाइड। बट इफ इट इज़ नॉट 0 देन ऑब्वियसली मॉडिफिकेशंस हैव ऑलरेडी बीन मेड। अब हमें क्या करना है, बस हमने क्या किया, अब हमारा काम हो गया, फाइल हमने क्लोज कर दी। तो इस प्रोग्राम में मैंने सिंपली क्या किया, एक रिकॉर्ड रीड किया, रीड करने से पहले उसकी पोजीशन स्टोर कर ली। रिकॉर्ड के एंड में आने के बाद जब वो रैम में लोड हो गया तो हमने उसको चेक किया, अगर वो रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड है तो हमने उसमें चेंजेस कर लिए, और अगर नहीं है तो हमने उसको एज इट इज़ ही रहने दिया। ठीक है, और अगर हमें वो रिकॉर्ड मिल गया है जिसे हमें मॉडिफाई करना है तो हम उस रिकॉर्ड की बिगनिंग में जाके उसको रीराइट कर देते हैं और हमारा काम फिनिश हो जाता है। Okay, so this is how the program is done. So see here, this is the output screen. Here you can see that I entered the name as Sachin. Okay, so and I wanted his age to be 30. Now earlier, now you see, after this was the output screen for my this code, but after running this code I have run another code in which reading of this file is being done. आपको फाइल का कंटेंट रीड करना आता है, मैंने यहाँ पे उसी कंटेंट को रीड किया और देखा कि जो चेंजेस मैंने करना चाहा था वो चेंजेस सचिन के एज में हो गए हैं। ठीक है, आई एम शोइंग यू द प्रीवियस कंटेंट ऑफ फाइल अगेन। ये देखिए सचिन की एज यहाँ पे 26 थी, बट आफ्टर चेंजिंग मीन्स आफ्टर रनिंग द कोड एज हैज़ बिकम नाउ 30। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि एज पहले भी इंटीजर थी और न्यू वैल्यू भी इंटीजर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अगर आपने एज में कुछ ऐसा चेंज किया होता जिसकी वजह से एज का डेटा टाइप बदल जाता तो आपको ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये आपको आपकी फ़ाइल को करप्ट कर देता और आपका फाइल फिर वो यूजलेस हो जाती। ठीक है, now see I have used another output to make you understand. Next input I gave as Raghav. So when Raghav was given, age was new age was 67, but it never found a record whose name was Raghav, so it simply said no such record is present in the file. Now same program using temporary file.
अब इसी काम को, यानी आपको किसी की एज चेंज करनी है, इसी काम को आप टेम्परेरी फाइल से कैसे करेंगे? फॉर दिस यू विल सिंपली see, first of all you have to import pickle as well as OS module, because you are going to make use of load and dump function for which pickle is required, and you are going to use remove rename function for which OS module is required. So these two are important in the program. Now worker.dat is opened in read mode, whereas temp.dat is opened in WB mode. ठीक है, तो ओरिजिनल फाइल को हमने रीडिंग के लिए खोला और टेम्परेरी फाइल को राइटिंग के लिए खोला. यूज़र से एक नेम का इनपुट मांग लिया और एज का इनपुट मांग लिया. अब यूज़र ने जो नेम दिया हमें पहले उसको ढूंढना पड़ेगा, और जैसे हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा हमें उसकी एज को चेंज कर देना होगा विद द न्यू एज विच इज़ इनपुट बाय यूज़र. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल को रीड करना स्टार्ट किया. ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब की बार हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी फाइल बना रहे हैं, तो हमें इसकी बिगनिंग इंडेक्स किसी रिकॉर्ड की स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन रिमूव दिस लाइन. नाउ सी, पहला रिकॉर्ड मैंने रीड किया, अगर उसका नेम NM के बराबर होगा तो मुझे वो रिकॉर्ड मिल चुका है जिसे मुझे मॉडिफाई करना है. और उसके बाद मैंने न्यू एज का जो इनपुट ले रखा था वो एज मैंने डी एज को असाइन कर दिया. मतलब आपका रीड किया हुआ ऑब्जेक्ट रैम में था, रैम की एज रैम वो फिर उसी ऑब्जेक्ट की एज को आपने चेंज कर दिया और यूज़र के लिए आपने बता दिया कि रिकॉर्ड मॉडिफाइड. ठीक है, फिर ऐसा हो जाने के बाद अब आप देखिए आपके पास फाइल में मतलब रैम में ऑब्जेक्ट लोड होके आया था, आपने चेंजेस कर दिए. अब आपको चेंजेस करने के बाद उसको क्या करना है, टेम्परेरी फाइल पे डंप करना होगा. ठीक है, और अगर ये चेंजेस, अगर ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिसे आपको मॉडिफाई करना है तो उसको हम एज इट इज़ टेम्परेरी फाइल पे लिख देंगे. मतलब हमने सिंपली क्या किया, हमें रिकॉर्ड रीड किया, अगर चेंज करने वाला है तो चेंज किया, उसके बाद फाइल पे लिखा, और अगर चेंज करने वाला नहीं है तो उसको डायरेक्ट फाइल पे एज इट इज़ लिख दिया. ठीक है, सो वी हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट इन द टेम्परेरी फाइल नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज. लेकिन अगर रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड है तो चेंजेस करके फाइल पे लिखिए, वरना एज इट इज़ लिख दीजिए. ठीक है, और अगर सारा रिकॉर्ड रीड करने के बाद भी हमारा फाउंड 0 रहता है तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, ये हम एंड यूज़र को बता दे रहे हैं. दोनों फाइल को क्लोज करने के बाद मैंने रिमूव और रीनेम का काम किया है. ठीक है, नाउ लेट अस सी द आउटपुट स्क्रीन. See, this is the content of worker.dat when I ran this program. Okay, you can see that Karan is 56, Ravi is 34, Sachin is 30 and Rohit is 45 years of age. So let us run this code. So see, I gave the name as Karan. So I wanted the age of Karan to be changed and the new age is 29. ठीक है, अब उसने कहा उसको करण मिल गया और उसने रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर दिया है. सो हियर यू कैन सी दैट द एज ऑफ करण इज नाउ 29. लेट मी शो यू द प्रीवियस कंटेंट वंस. एज ऑफ करण वॉज 56 अर्लियर बट नाउ इट इज 29 एज पर योर रिक्वायरमेंट. क्लियर? तो ये जो हमारा टेम्परेरी फाइल में लिखने वाला मेथड होता है ये बेस्ट होता है, ये हर सिचुएशन में आपका सही चलेगा. तो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर इट. And if you want to modify the same file, means perform modification in the same file, तो पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, और वो क्या है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू इलस्ट्रेट नाउ with the help of this code. Assume that a file employee.dat is already created containing few records of workers, जिसमें डिटेल्स हैं लाइक EID, E-name, city, सैलरी, ये डिटेल्स हैं हर रिकॉर्ड के अंदर इन द फॉर्म ऑफ अ डिक्शनरी. अब आपको यूज़र से एक नेम का इनपुट लेना है और उसकी सिटी को न्यू सिटी इनपुट बाय यूज़र से रिप्लेस कर देना है. यूज़र आपको एक नेम देगा और एक सिटी नेम देगा. यूज़र जो भी एम्प्लॉय नेम देता है उसकी सिटी को आपको न्यू सिटी से रिप्लेस कर देना है. अब यहाँ पे मैंने
पर्टिकुलरली ये प्रोग्राम इसलिए लिया है कि मैं आपको ये शो करूँगी कि अगर आपने ये जो न्यू सिटी का नेम दिया, अगर वो नेम छोटा है तो क्या प्रॉब्लम आती है, अगर वो नेम बड़ा है तो क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज आई एम गोइंग टू मॉडिफाई इन द सेम फाइल, और उसके बाद मैं न्यू स्ट्रिंग की लेंथ डिफरेंट कर दे रही हूँ, तो क्या होता है। सपोज दिस इज द कंटेंट ऑफ एम्प्लॉय डॉट DAT, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रोग्राम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिमूव रीनेम यूज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ लोड डंप यूज़ करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेम फाइल पे मॉडिफिकेशन कर रही हूँ यूजिंग द फर्स्ट मेथड दैट आई टोल्ड यू, ठीक है। फाइल को मैंने रीड राइट मोड में ओपन किया है यूजिंग द RB+ मोड, ठीक है। रीडिंग राइटिंग दोनों हो सकती है। फाउंड को 0 ले लिया, यूज़र से न्यू एक नेम मांगा और उससे न्यू सिटी मांगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले पोजीशन उसकी, हर रिकॉर्ड की बिगनिंग पोजीशन स्टोर करके रखते हैं, इसलिए क्योंकि हमें ऐसा हो सकता है कि हम जो रिकॉर्ड रीड कर रहे हैं, इस समय करने जा रहे हैं, यही वो रिकॉर्ड है जिसे हमें चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि उस केस में आपको वापस इसकी बिगनिंग में आना पड़ेगा, इसीलिए हम पॉज स्टोर करके रखें। अगर हमारे पास हमने जो रिकॉर्ड रीड किया वो रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं होना है, तो पॉज की वैल्यू यूजलेस चली जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला रिकॉर्ड रीड किया, चेक किया कि क्या उसका नेम सेम एज NM है, अगर है तो हम उसको सीधे कह देंगे फाउंड। फिर उसके बाद इसकी सिटी के नेम को चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कर्सर को पहली उसकी बिगनिंग में रखा, मिल जाने पे आपको उसको बिगनिंग पे ले जाना होगा और फिर वहाँ पे जाके राइटिंग कर देनी होगी और यूज़र को बता देना होगा रिकॉर्ड मॉडिफाइड। जब आप एक्सेप्ट में आओगे, अगर फाउंड 0 मिलेगा तो आपको लिखना होगा नो सच रिकॉर्ड प्रेजेंट, और अगर 0 नहीं मिलेगा तो यानी कि आपका मॉडिफिकेशन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत वैसा ही कोड है बिल्कुल, लेकिन मैं जो पॉइंट आपको इलस्ट्रेट कर रही हूँ वो इस मेथड की शॉर्टकमिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट है जिसमें मैंने 3 प्रोग्राम एक्चुअली रन किए हैं। सबसे पहले मैंने रीड वाली प्रोग्राम को रन किया है ताकि आपको पता चले कि इनिशियल कंटेंट फाइल का क्या था, ठीक है। तो इनिशियल कंटेंट फाइल का ये है, ठीक है। अब मैंने यूज़र्स जब अपना ये मॉडिफाई वाला प्रोग्राम रन किया, जो अभी आपको कोड दिखाया, उसमें मैंने इनपुट दिया नेम हेमंत का और उसकी न्यू सिटी का नेम गाज़ियाबाद दिया। अब देखिए, हेमंत का पुराना सिटी पुणे था, लेकिन गाज़ियाबाद कैसी वैल्यू है, लेंदी वैल्यू है, मतलब इस गाज़ियाबाद की लेंथ पुणे से ज़्यादा है। तो उस केस में देखिए क्या हुआ, उसने आपको अनपिकलिंग इनवैलिड लोड की एरर दिया। इसका मतलब ये होता है कि आपने जब ज़्यादा वैल्यू दे दी, लंबी स्ट्रिंग दे दी, तो जो आगे वाली की है वो ओवरराइट हो गई, इस एक्स्ट्रा वैल्यू की वजह से वो ओवरराइट हो गई और उसको आगे की प्रॉपरली मिली नहीं। इसलिए उसने, देखिएगा कि सिटी गाज़ियाबाद हो गई है, ये देखिए सिटी गाज़ियाबाद हुई है, लेकिन उसके बाद का वो जो रिकॉर्ड है वो उसको रीड नहीं कर पाया, क्योंकि आगे की फाइल अब करप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो 4 ही लेटर का सिटी नेम था, अब आपने जब उसको ज़्यादा वैल्यू दे दी तो आगे की वैल्यूज़ गाज़ियाबाद की वजह से ओवरराइट हो गई, जिसकी वजह से नेक्स्ट की मिली नहीं और रीडिंग में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे फिर से इस काम के बाद, मतलब मॉडिफिकेशन के बाद मैंने फिर से फाइल का कंटेंट रीड किया, तो देखिए वो मुझे कह रहा है कि ये अनपिकलिंग एरर हो रही है। अब कुछ ऐसा डेटा है जिसको मैं अनपिकल नहीं कर सकता, इसलिए आपको ये एरर आई। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई गिव अ स्मॉलर वैल्यू सी। मैंने क्या किया, यहाँ पे फाइल को फिर से रीसेट कर दिया था, उसके बाद मैंने फाइल का कंटेंट शो किया। ये देखिए, ये फाइल का कंटेंट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने निखिल के लिए कहा कि सिटी नेम गोवा कर दो। अब निखिल की सिटी नेम बेंगलोर है, मैंने उसको छोटी वैल्यू दे दी गोवा। अब क्या होगा कि आपका जो BAN है ये तो GOA से रिप्लेस हो गया, लेकिन GLORE ये बच गया, जो कि हमें नहीं चाहिए था। मतलब गोवा
GLORE, इतनी वैल्यू हो गई, जिसकी वजह से ये अजीब सा डेटा हो गया। और उसको नेक्स्ट, अब क्योंकि कम वैल्यू है ना, ठीक है, अब लेंथ कम है, तो उसको क्या हुआ, अपना अगला मार्क मिला नहीं और आपको उसने अनपिकलिंग एरर दे दी। तो छोटी वैल्यू दोगे तो भी प्रॉब्लम है, बड़ी वैल्यू दोगे तो भी प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली उसी लेंथ की स्ट्रिंग दोगे तभी कोड सही चलेगा, ठीक है। तो देखिए उसने क्या किया, सिटी को गोवा कर दिया, मैंने फिर से रीड करने का प्रोग्राम रन किया था, तो गोवा उसने कर दिया, लेकिन आगे का डेटा अब उसका करप्ट हो चुका है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये जब आप मॉडिफिकेशन इन सेम फाइल करते हैं तो डेटा टाइप चेंज करने में और स्ट्रिंग का लेंथ चेंज करने में वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप टेम्परेरी फाइल बना लो, या फिर सेम फाइल में मॉडिफिकेशन का जो सेकेंड मेथड है उसको फॉलो करिए। What is the other way to perform modification in the same file? आपको टेम्परेरी नहीं बनानी है, सेम फाइल में ही चेंज करना है, तो उसके लिए क्या है, आप क्या करेंगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले रीड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द फाइल, आपको एक एक रिकॉर्ड करके रीड करते रहना है और हर रिकॉर्ड को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। मान लीजिए कि हमने एक लिस्ट ले ली और उस लिस्ट में हर ऑब्जेक्ट को अपेंड करते चले गए, लेकिन जैसे ही हमें वो रिकॉर्ड मिलेगा जिसे हमें मॉडिफाई करना है, तो उसको हम एज इट इज़ अपेंड नहीं करेंगे लिस्ट में, उसको हम चेंजेस करने के बाद अपेंड करेंगे। यानी कि पहला रिकॉर्ड मिला, पहला रिकॉर्ड रीड किया, ये वो रिकॉर्ड नहीं है जिसे आपको चेंज करना है, आपने उसको एज इट इज़ लिस्ट में अपेंड कर दिया। लेकिन दूसरा रिकॉर्ड रीड किया तो वो वही रिकॉर्ड है जिसे मुझे चेंज करना है, तो मैंने उसको डायरेक्ट नहीं अपेंड किया, मैंने उसको चेंज करने के बाद अपेंड किया, ठीक है। और यही प्रोसेस हम करते गए हर ऑब्जेक्ट के लिए। जब आप एंड ऑफ फाइल पे आ जाएंगे तो आप क्या करिए, प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ द फाइल, फाइल को बिगनिंग पे ले जाओ, फिर फाइल की लेंथ को 0 से ट्रंकेट कर दीजिए। मतलब ट्रंकेट एक फंक्शन है जिससे हम फाइल के कंटेंट को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर हमने 0 पास किया तो क्या होगा कि आपकी फाइल का सारा कंटेंट गायब हो जाएगा, ठीक है। सारा कंटेंट गायब हो गया। अब आपके पास लिस्ट में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं विद द रिकॉर्ड टू बी मॉडिफाइड ऑलरेडी मॉडिफाइड। अब आप क्या करिए, 0 पोजीशन पे जाके सारे ऑब्जेक्ट्स को लिखते चले जाइए, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमने रिकॉर्ड रीड किया, अगर चेंज करने वाला था तो करके उसको अपेंड किया, नहीं चेंज करने वाला था तो एज इट इज़ अपेंड किया। जब सारे रिकॉर्ड का काम हो गया तो हमने फाइल के सारे कंटेंट को गायब कर दिया और कर्सर को इनिशियल 0 बाइट पे पहुंचा दिया, और फिर अब आपकी फाइल एम्प्टी है, उस फाइल पे हमने सारे ऑब्जेक्ट एक साथ लिख दिए और फिर फाइल को क्लोज किया, ठीक है। तो इसको प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। Consider that a file study.dat is already created having details like BNO, bname, price, author in the form of a dictionary. Now you have to change the author of Python CS to SK Mittal and increase the price of Harry Potter by 12%. Harry Potter की प्राइस आपको 12% से इंक्रीज करनी है और Python CS के ऑथर को SK मित्तल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों टाइप के चेंज किए हैं। पहला चेंज है कि आपकी स्ट्रिंग में चेंजेस हो रहे हैं। आप देखिए मैं आपको प्रीवियस कंटेंट भी दिखाऊंगी कि फाइल का क्या है, और नया स्ट्रिंग जो हम दे रहे हैं वो SK मित्तल है। और ये जो हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर बुक है, उसकी प्राइस 12% से इंक्रीज़ होगी। अब 12% से इंक्रीज़ होने का मतलब यानी कि वी हैव अ डाउट दैट द प्राइस इफ़ इट इज़ अर्लियर इंटीजर इट माइट बी नाउ फ्लोट वैल्यू। तो तब भी हम ये काम कर पाते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। तो देखिए ये मेरा प्रीवियस कंटेंट है फाइल का। पाइथन CS की राइटर हैं सुमिता अरोड़ा, जिसको मुझे SK मित्तल करना है, ठीक है। ऑब्वियसली लेंथ इज डिफरेंट, ओके ना। हैरी पॉटर की प्राइस 600 है, मुझे उसको 12% से इंक्रीज़ करना है। 12% से इंक्रीज़ करोगे
डेसिमल में वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप देखिए कैसे किया। फाइल को रीड राइट मोड में ओपन किया, फाउंड को 0 रखा, और ये देखिए मैंने वो वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं सारे रिकॉर्ड्स को अपेंड करने वाली हूँ, लिस्ट ले ली एक। ठीक है, फिर अगेन मुझे यहाँ पे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, सिंस आई हैव जस्ट कॉपीड एंड पेस्टेड द कोड, इसलिए ये प्रॉब्लम सब में आ गई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर एक्स्ट्रा लाइन रहेगी भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहला रिकॉर्ड रीड किया, और अगर उसका नेम पाइथन CS है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यूज़र को बताया कि आई एम गोइंग टू मॉडिफाई पाइथन CS। फाउंड को मैंने इंक्रीज़ कर दिया ताकि मुझे पता चले कि मैंने रिकॉर्ड मॉडिफाई किए कि नहीं किए। फिर ऑथर को SK मित्तल किया, और उसके बाद मुझे 2 चेंजेस करने थे ना, पाइथन CS के ऑथर को बदलना था, हैरी पॉटर के प्राइस को बदलना था। तो दूसरा इफ़ हैरी पॉटर के प्राइस को चेंज कर रहा है। और अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपेंड कर रहे हैं। अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसने ये काम करके रिकॉर्ड को बदल दिया होगा। अगर ये ट्रू हुई तो ये काम करके रिकॉर्ड को बदल दिया होगा। और अगर दोनों ही नहीं ट्रू हुई तो फिर रिकॉर्ड एज इट इज़ अपेंड हो जाएगा। मतलब रिकॉर्ड को अपेंड तो होना ही है लिस्ट में, चेंजेस के बाद या बिना चेंजेस के, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही एंड ऑफ फाइल आया हमने चेक किया कि अगर फाउंड 0 है तो हमें मिला ही नहीं वो रिकॉर्ड जिसे हमें लिखना है, मतलब जिसे हमें मॉडिफाई करना है उसको बता दिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फाइल को 0 लेंथ की बना दे रहे हैं यूजिंग दिस ट्रंकेट फंक्शन। तो जितना डेटा था मेरे पास लिस्ट में है वो डेटा, और फाइल से मैंने सब गायब कर दिया। अब मैंने क्या किया, कर्सर को 0 बाइट पे भेजा और सारे रिकॉर्ड्स बस फाइल पे डंप करते चले गए। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, लिखा हुआ कंटेंट सब गायब करके फिर से नए सिरे से उस फाइल को लिख दिया। तो अब की बार क्या होगा, फाइल में मॉडिफाइड कंटेंट होगा और आपने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए दिस इज़ द इनिशियल कंटेंट, ठीक ये था। फिर मैंने रन किया तो उसको जब पाइथन CS मिला तो उसने सुमिता अरोड़ा की जगह SK मित्तल कर दिया होगा, इसीलिए वो कह रहा है मॉडिफाइड पाइथन CS। फिर जब हैरी पॉटर उसको मिला होगा तो उसने प्राइस को 600 प्लस 12% ऑफ 600 करके न्यू प्राइस निकाली होगी और वो उसने प्राइस को असाइन कर दी। ठीक है, तो इसीलिए उसने कहा मॉडिफाइड हैरी पॉटर। अब आप देखिए आपके दोनों करेक्शंस इसमें हो गए हैं, और दोनों करेक्शन हुए हैं, डेटा टाइप का चेंज भी हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ का चेंज भी हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, तो अगर आप सेम फाइल में ही मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं और डेटा टाइप भी बदलना चाहते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ भी बदलना चाहते हैं, तो आपको इस मेथड को यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको ये मेथड मतलब सेम फाइल पे मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो आप टेम्परेरी फाइल बना के ये कर लो। टेम्परेरी फाइल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सेम फाइल में मॉडिफिकेशन अगर करना है और इस टाइप का लाइन चेंज करना है, मतलब लेंथ चेंज करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, सो I hope you must have understood what are the different ways of modifying data in a binary file. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you so much.